Starting in the name of Allah, the most compassionate and the most merciful. Assalamu alaikum to all. Well, grade 6, once again I am here with you in another lecture. It's a pleasure for me. Hopefully you all are learning a lot in these video lectures. Our topic is future continuous tense. As you know that we have started a series of continuous tenses and this is our last lecture today. So future continuous tense. Kindly open your workbooks with me at the page number 37, 38, 39, 40, 41 and 42. Kindly open your workbooks with me quickly and beta be attentive. Just listen to me carefully, solve your all activities और वो activities जो कि आपको as homework दी जाएंगी या जो आपने खुद से करनी है उनको भी आप बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करेंगे बिकॉज टेंसेस जो हैं वो हमें प्रैक्टिस से आते हैं. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Future continuous tense. Firstly, we will see its definition. Well, a tense that describes the continuity of an action in future is called future continuous tense. बेटे जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर जो है वो आने वाला जो वक्त होता है, तो ये टेंस क्या है? ऐसा टेंस जो कि फ्यूचर में किसी काम के जारी होने को जाहिर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. जैसे आपको आज मैं ये लेसन दे रही हूँ एंड यू आर प्लानिंग दैट यू विल लर्न इट बाय टुमारो. तो ये क्या है कि आप कल के बारे में प्लान कर रहे हो. मीन्स आप कहोगे कि आई शैल बी लर्निंग माय लेसन. मैं अपना काम याद कर रहा हूँगा, राइट? तो वो काम जो कि आप फ्यूचर में कर रहे होते हो उस टेंस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट? नाउ लुक एट हेल्पिंग वर्ब्स एंड एग्जांपल्स. अब हम इसमें देखेंगे कि वहाँ पर हमने इज आर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब था और वॉज वर्ड जो था वो प्रेजेंट में था. नाउ वी विल सी दैट के फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा. हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी और शैल बी है. यूज्ड इन दिस सेंटेंस इन टेंस. शैल बी इज यूज्ड विद सब्जेक्ट आई एंड वी. शैल बी आपने किसके साथ यूज करना है? आई और वी के साथ. विल बी इज यूज्ड विद ही, शी, इट, दे, यू एंड ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. ing is added with first form of verb. Well bete, you have seen that one thing was quite common in all the series of continuous tenses और वो क्या था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. हमारे जो तीनों टेंस थे उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ing को यूज़ किया और हमारे हेल्पिंग वर्ब जो थे वो चेंज होते रहे. नाउ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स. आई शैल बी लर्निंग माय लेसन. We shall be learning our lesson. You shall be learning your lesson. He will be learning his lesson. She will be learning her lesson. Well bete, you will have to learn all this कि आपने कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस टेंस में यूज करनी है. Again, look at the rule of positive sentences. Well, subject plus helping verb will be, shall be and verb, first form of verb plus ing and at the end object. Well bete, when you are converting any sentences into future continuous tense, just write the subject at the beginning, then helping verb will be या shall be में से कोई एक, then first form of verb और last पे object. To make a positive sentence,
subject is placed in the beginning of that sentence. After that helping verb will be, shall be is placed, then first form of verb. Now look at the examples, और last पे आप क्या करेंगे, object add करेंगे. For example, I shall be playing game, we shall be playing game, you will be playing game, he will be playing game. Well, it's quite easy. आपने just थोड़ी सी बातों को याद करना है, ध्यान में रखना है, then you can easily solve the exercises related to this tense. Well class, here is an activity. Translate the following sentences into English. उर्दू से हम इंग्लिश में इनको कन्वर्ट करेंगे. द फर्स्ट सेंटेंस इज, वो इस वक्त आराम कर रहा होगा, ही विल बी टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम. चूल्हे से धुआं उठ रहा होगा, द स्मोक विल बी राइजिंग फ्रॉम द बर्नर. वो पुराने सिक्के जमा कर रही होगी, शी विल बी कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स. Number 4, the children will be making a noise. And the last one is, Akbar will be harvesting the wheat. Akbar गंदुम काट रहा होगा. Well class, next activity is again very easy. These are the fill in the blanks. हमने subject के मुताबिक blanks में helping verb को लगाना है, ठीक है. He will be singing a song. Next one is, देखें ज़रा, I dash playing football. I shall be playing football. ओके बेटे, नेक्स्ट जो है वो आप खुद से करेंगे. Do all this work carefully and neatly. Now look at the rules of negative sentences. Well, subject plus helping verb will not be and shall not be. Well बेटे, आपने will के बाद not लगाना है, then be. और इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने कोई भी लगाना है. यू कैन यूज विल नॉट बी और शैल नॉट बी. देन सिंपल अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. नाउ लुक एट द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई शिल नॉट बी प्लेइंग टेनिस, वी शिल नॉट बी प्लेइंग टेनिस, यू शिल नॉट बी प्लेइंग टेनिस. वेल, इट इज़ क्वाइट ईजी, सिंपल. हमने जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, विल और शैल के बाद नॉट भी लगा देना है. स्टार्ट पे हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन विल नॉट बी या शैल नॉट बी में से कोई एक लास्ट पर, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट. रिमेंबर दिस while making the negative sentences. Well, at page 39 there is again an activity. उर्दू में हमें नेगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं. वी विल हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू इंग्लिश. वेल, हामिद जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा होगा, हामिद विल नॉट बी लीडिंग द प्रोसेशन. नंबर 2, राशिद विल नॉट बी स्मेलिंग फ्लावर्स, I shall not be criticizing his opinion. The cook will not be cooking food. Student will not be decorating the school. Well class, write all these sentences neatly and carefully and be attentive. And there is again an exercise. Rewrite the following as negative sentences. आपने rewrite करना है इन sentences को नेगेटिव सेंटेंसेस में. तो बेटे ये वाली एक्टिविटी जो है वो आप खुद से करेंगे. इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, सो सॉल्व इट एज वेल. वेल, रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पर क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे आप. टू चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव, विल शैल इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, बी इज प्लेस्ड आफ्टर वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क इज आल्सो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट. फॉर एग्जांपल, शैल आई बी फाइटिंग विद यू. इन दिस एग्जांपल बेटे यू कैन सी दैट विल और शैल अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट पर आया है, देन उसके बाद हमने आई सब्जेक्ट को ऐड किया है एंड राइट फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड राइट आफ्टर द सब्जेक्ट बी इज पुट एंड आफ्टर दैट फाइटिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड द लास्ट इज
ऑब्जेक्ट और लास्ट पर हमने क्वेश्चन मार्क भी पुट किया है. सो learn these rules carefully so that you can translate or you can write interrogative sentence of this tense. Now we will do an activity. Here is our last activity. Well, I have done some random sentences. Will Rizwan be dozing in the classroom? क्या रिजवान जमात में ऊँग रहा होगा? Woman will not be crying for help. औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही होगी. क्या मजदूर घर तमीर कर रहे होंगे? Will laborers be constructing a house? Well बेटे, आपने अब जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं उसको आप खुद से करेंगे एंड रिमेनिंग 2 एक्सरसाइजेस जो हैं दोज आर ऑल्सो वेरी इजी. आप उनको भी केयरफुली पहले रीड करिएगा, देन यू विल हैव टू सॉल्व देम. वेल, आई हैव गिवन यू मैक्सिमम नॉलेज अबाउट द सीरीज ऑफ टेंसेज, सॉरी कॉन्टिन्यूस टेंसेज. नाउ आप इनको अच्छे से करिएगा. जो एक्सरसाइजेज मैंने यहाँ पर करवाई हैं वो भी, और जो मैं आपको एज होमवर्क दे रही हूँ वो भी आप नीटली अपनी वर्कबुक के ऊपर सॉल्व करिएगा. राइट? वेल, एट द एंड आई एम लिविंग यू विद दिस वंडरफुल मैसेज: knowledge is of no value unless you put it into practice. Well class, I have given you maximum knowledge about the series of continuous tense. Now it's your turn. Kindly do practice and do all your work carefully and neatly. Learn the rules, definitions and all the stuff which I have given you. So stay home, stay safe, take a great care of yourself. Bye bye.